Hello students, how are you? Welcome back to the English class. Today I am going to explain to you the story Silk Road written by Nick Middleton. You know, Silk Road is an ancient trade route linking China with Middle East and Europe in the West. Silk was the major item in which trade was done between China and other countries. That's why this road was named Silk Road. And this story is entitled Silk Road because the protagonist, that is the narrator, explored this region during his journey. That's why he named this story as Silk Road. This story is about the journey of the writer from a place called Rao in the Tibet region of China. He started his journey from Rao and he wanted to go to Mount Kailash. The nearest town from Mount Kailash is Darchan. So he went up to Darchan. And his purpose of going to Mount Kailash was to perform a religious ritual called Kora. Kora means going around a sacred place. So, Kora is a religious ritual performed by devout Hindus and Buddhists. It means going around some sacred place. यानी किसी sacred प्लेस, किसी sacred चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाना. ओके, तो ये माउंट कैलाश जा करके वहाँ पे कोरा करने का नरेटर का प्रोग्राम था. इसलिए वो एक जगह थी तिब्बत में राऊ, वहाँ से वो ट्रैवल करके वो डार्चन जाना चाहते थे. लेकिन जर्नी कोई इतनी आसान नहीं थी. ठीक है, तो ये वो स्टोरी है कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और कैसे वो वहाँ पर पहुँचे. ऑन द वे he faced many problems also. He has described all those things. And he has described the landscape of that area. He has also described the people and the animals, whatever he saw and whatever problems he faced on the way. All right. Now we'll read the story. A flawless half moon. Flawless means free from any flaw. Flaw means imperfection. यानी कोई चीज़ जिसके अंदर कोई कमी ना हो. A flawless half moon, यानी half moon which had no flaw, which had no imperfection, floated in a perfect blue sky. Float means तैरना. It floated in a perfect blue sky. The sky was blue and the flawless half moon floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. On the morning. It means they started their journey in the morning. The morning we said our goodbyes. The morning they said their goodbyes. It means they started their journey early in the morning and they said goodbyes to the people who saw them off. Extended banks of cloud, like long French lobes. Extended banks of clouds means बैंक्स मीन्स एजेस. क्लाउड्स के जो एजेस थे, उसके जो किनारे थे, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड थे. एक्सटेंडेड मीन्स बढ़े हुए. ओके, तो जो क्लाउड्स के जो किनारे जो एक्सटेंडेड थे, लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स. फ्रेंच लोव्स मीन्स दिस इज द लॉन्ग लोफ ऑफ ब्रेड. ओके, दे आर कॉल्ड फ्रेंच लोव्स. So the extended clouds of extended banks of clouds looked like French lobes. वो फ्रेंच लोब्स की तरह लग रहे थे. ग्लोड पिंक. और ये जो क्लाउड्स थे ना, जो उसके जो बैंक्स थे जो बढ़े हुए थे फ्रेंच लोब्स की तरह, वो कैसे दिख रहे थे? ग्लोड पिंक. वो पिंक कलर का ग्लो दे रहे थे, उसके अंदर से पिंक ग्लो आ रही थी. एज द सन इमर्स्ड टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद रोज टेंटेड ब्लश. एज द सन इमर्स्ड, जब सूरज निकला. व्हेन द सन रोज. And what the sun did after rising, after emerging?
to splash the distant mountain tops. So there were mountain tops in distance, in a distance, and the rays of the sun, splash means fell. The rays of the sun fell on the distant mountain tops. जो दूर माउंटेन टॉप्स थे उसके ऊपर सूरज की रोशनी जो है उसकी रेज पड़ रहे थे. ओके, माउंटेन टॉप्स विद द रोज टिंटेड ब्लश. ब्लश मीन्स कलर, रोज टिंटेड मीन्स, टिंट मीन्स स्लाइड कलर. ठीक है, रोज टिंटेड मीन्स जो उसका कलर था सूरज की किरणों का, वो तो उसमें जो है ना रोज कलर का टिंट था. टिंट मीन्स स्लाइट मिक्सचर ऑफ अ कलर. ठीक है, तो रोज़ कलर का उसके अंदर थोड़ा सा मिक्सचर था उसकी रोशनी में, तो रोशनी बहुत खूबसूरत मालूम हो रही थी. तो जब सूरज निकला, when the sun rose from the east and its rays fell on the distant mountain and its light was rose tinted and it looks very beautiful. Now that we were leaving Rao, okay, so it is clear that they were in Rao when this story started. Okay, now they are leaving the place called Rao. Okay, and at the time of leaving Rao, Lamo said she wanted to give me a farewell present. Lamo is the name of a lady. She is a local lady in Rao, and she said she wanted to give me a farewell present. So Lamo, a local lady of Tibet, she told the protagonist that she wanted to give him a present, a gift. One evening, I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Korah. Okay. Who is Daniel? Daniel is the narrator's companion, who is also accompanying him. He will go with the narrator up to a short distance. Okay. तो ये डेनियल जो है नरेटर का एक को ट्रेवलर है, उसके साथ ये जाएगा थोड़ी दूर तक. और एक्चुअली द नरेटर इज इंग्लिश स्पीकिंग, ही डजेंट नो द लोकल लैंग्वेज. ओके, सो डेनियल वर्कड एज एन इंटरप्रेटर. डेनियल ने नरेटर के इंटरप्रेटर के तौर पे काम किया. तो एक दिन ऐसा हुआ कि लामो, वन इवनिंग आई टोल्ड her through Daniel. One evening I told her through Daniel. इसका मतलब क्या है कि एक दिन जो है ना, चूँकि नरेटर को सिर्फ इंग्लिश मालूम थी, उसको लोकल लैंग्वेज नहीं मालूम थी, इसलिए उसने लामो को डेनियल के थ्रू बताया. वन इवनिंग, एक शाम को, Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Korah. Okay, उसने क्या बताया? What the narrator told Lamo through Daniel? He told her that he was heading towards Mount Kailash to complete the Korah. This is the purpose of his journey to Mount Kailash. He told Lama through Daniel that he was going to Mount Kailash to complete the Korah. Okay? And she said that I ought to get some warmer clothes. And Lamo said to the narrator that he needed to get some warmer clothes. वहाँ पे चूँकि ठंड बहुत थी, इसलिए लामो ने कहा कि ऊपर जाने के बाद और ठंड लगेगी. ठीक है, क्योंकि माउंट कैलाश काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए उसने कहा कि आपको कुछ गर्म कपड़े ले जाने की ज़रूरत है, वार्मर क्लोथ्स ले जाने की आपको ज़रूरत है. ओके, दिस इज़ व्हाट लामो टोल्ड द नरेटर. आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट. डक मीन्स टू लोअर हेड, यानी सर को थोड़ा झुकाना. वो लोग एक टेंट में वो रहते थे, वो लेडे. ओके, तो टेंट में जाने के लिए थोड़ा सा सर झुका के जाना पड़ता है. तो शी लोअर्ड हर हेड एंड एंटर्ड द टेंट. आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, यानी अपने टेंट पे डक करने के बाद, जब वो डकिंग बैक मीन्स टेंट के अंदर गए और फिर वापस आए.
ठीक है. तो आफ्टर गोइंग इन टू द टेंट एंड वेन शी केम बैक, शी immersed means she came back carrying one of the long sleeved sheepskin coats. So when the lady Lamo, she came back from the tent, and what she brought? She brought a long sleeved sheepskin coat. Okay, that all the men wore. वो क्या लाई वहाँ से अंदर से जो है ना, वो लाई एक लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट लाए. वहाँ शीप स्किन यानी शीप की स्किन का बना हुआ एक कोट लाए. वो काफ़ी गर्म होता है. दैट ऑल द मेन वोर, वहाँ पे जितने मेन होते थे वो सब वही शीप स्किन का कोट पहनते थे. ठीक है. सो बिकॉज शी हैड प्रॉमिस्ड हिम दैट शी वांटेड टू गिव हिम अ फेयरवेल प्रेजेंट. ओके. And she wanted to give this sheepskin coat as a farewell present to the protagonist. Satan sized me up as we clambered into his car. Clambered means climbed. Satan, who is Satan? Satan is the driver of the narrator. Satan actually is a man who is having his own car, his own vehicle, and he is the one who will take the narrator to to Mount Kailash. Okay. So Satan जो है ने उसको देखा. Satan sized me up means उसको देख कर उसको he looked at the narrator attentively and he got his size. मतलब कहने का कि उसको देखा और अपनी नज़रों से उसका साइज़ लिया कि ये जो उसने लामो ने जो शीप स्किन का कोट उसको दिया था वो उसको फिट आएगी कि नहीं आएगी, ये देखने के लिए उसने उसको गौर से देखा. As we clambered into his car, clambered means climbed. As we clambered into his car, मतलब जब हम लोग जो सेटन की कार में जब क्लाइंबर कर रहे थे यानी उसके ऊपर चढ़ रहे थे तो सेटन ने नरेटर को देखा. He looked at him attentively whether the sheep skin coat will fit him or not. ठीक है. yes, he declared, Drogba son. Okay. He declared, Drogba means shepherd. Drogba son. So what it means? It means that when the narrator wore the sheepskin coat, he looked like Drogba. That's what Satan told him, that the narrator looked like a Drogba, looked like a shepherd. Okay. So in this paragraph, we learned that the protagonist, the narrator, started his journey from a place called Rao. Okay. And he started his journey in the morning. The sky was perfect blue and a half moon without any imperfection floated in the blue sky. Okay. And the banks of cloud were extended, and the extended banks looked like long French loaves which glowed pink. Okay. How it glowed pink? Because when the sun rose, its rays, its rose-tinted rays fell on the distant mountain tops, and it made the mountain tops glow pink. जब सूरज की किरणें माउंटेन टॉप पे पड़ रहे थे तो उससे उसका कलर जो है ना पिंक ग्लो कर रहा था. Now that when they were leaving Rao, Lamo was a local Tibetan woman. She told the narrator that she wanted that he should wear some warmer clothes. So at the time of at the time of saying goodbye, the woman gave him a sheepskin coat to the narrator as a farewell gift. Okay, and they started their journey in a car, and Satan was the name of the driver. And when Satan
looked at the sheepskin coat, she commented that the narrator looked like a shepherd. Oh, all right. We took a shortcut to get off the Changtong. Changtong is a place in Tibet, and they wanted to get off द चैंगटोंग. गेट ऑफ मीन्स लीव. वो लोग चैंगटोंग से बाहर निकलना चाहते थे. चैंगटोंग इज़ अ प्लेस वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी. ठीक है, तो उस इलाके से वो बाहर निकलना चाहते थे. एंड दे टुक अ शॉर्टकट. उन्होंने चैंगटोंग से बाहर निकलने के लिए एक शॉर्टकट लिया. ठीक है. सेटन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश. तो सेटन was the driver and he knew a route that would take them साउथ वेस्ट. तो वो सेटन को एक ऐसा रूट मालूम था जो उनको साउथ वेस्ट की तरफ ले जाएगा और जो माउंट कैलाश की तरफ डायरेक्टली जाता था. ठीक है. तो सेटन द ड्राइवर ही न्यू अबाउट द रूट विच वाज द शॉर्टकट टू माउंट कैलाश. And it involved crossing several fairly high mountain passes. तो ये जो शॉर्टकट है ना, ये अगर इस रास्ते से जाते हैं तो रास्ते में क्या पड़ेगा. इन्वॉल्व का मतलब होता है जो रास्ते में जो चीज़ें पड़ेंगी. ठीक है. तो इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स. तो रास्ते में जो है कई हाई माउंटेन पासेस भी पड़ेंगे. पासेस मीन्स जो माउंटेन्स जो होते हैं ना, उसके बीच में जो रास्ते होते हैं उनको पासेस पड़ते हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पासेस आएंगे जिनसे इनको गुजर करके जाना पड़ेगा. तो देयर जर्नी इन्वॉल्व्ड मैनी हाई माउंटेन पासेस. ही सेड बट नो प्रॉब्लम साहब. तो सेटन ने इनको बताया कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन पासेस आएंगे जिन्हें क्रॉस करना पड़ेगा. बट नो प्रॉब्लम सर. लेकिन सेटन ने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं सर. ही assured us if there is snow, but no problem sir. He assured us if there is no snow. Okay, so snow was going to be the main problem for them. ठीक है. उसने बताया सेटन ने कि अगर कोई स्नो ना हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. So snow was the main thing. If there was no snow, there would not be any problem. What was the likelihood of that, I asked. तो likelihood means possibility. तो नरेटर ने सेटन को पूछा, ड्राइवर को, कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, यानी स्नो होने की पॉसिबिलिटी क्या है. व्हाट वाज द लाइवलीहुड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्नो ऑन द वे. नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर. तो सेटन टोल्ड हिम दैट he did not know about it because he would come to know after getting there, after reaching there. वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ स्नो है कि नहीं. ओके. So Satan knew about a shortcut to Mount Kailash. So they took the shortcut, and the shortcut involved crossing several high mountain passes, and Satan assured the narrator that there would not be any problem if they did not encounter any snow on the way. The narrator asked him what was the chance, what was the likelihood of the presence of snow on the way. Satan told him that he would know about it only when they reach there. From the gently rolling hills of Rao, the shortcut took us across. From the gently rolling hills of Rao. तो दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम राव. और वहाँ का लैंडस्केप कैसा था. लैंडस्केप जो है ना, वो रोलिंग हिल्स थे. वहाँ पे हिल्स थे जो रोल कर रहे थे. ठीक है. और वहाँ से वो लोग उस रोलिंग हिल्स से गुजरते हुए जो शॉर्टकट था उनको ले गया. कहाँ ले गया. अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स. दे टुक देम. अक्रॉस मीन्स गोइंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर. किसी चीज़ की एक साइड से दूसरे साइड को जाने को अक्रॉस कहते हैं. तो द फर्स्ट दे
दे पास थ्रू जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राव, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्टकट था उनको जो है, द शॉर्टकट टुक देम फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ वास्ट ओपन प्लेन्स। रास्ते में बड़े बड़े मैदान थे, तो शॉर्टकट उनको इस पार से उस पार दे गया प्लेन्स के, विद नथिंग इन दैम। तो उन जो वास्ट प्लेन्स जो थे उसके अंदर क्या था, व्हाट वाज देयर इन द वास्ट प्लेन्स एक्सेप्ट अ फ्यू गजल्स। उसके अंदर कुछ नहीं था सिवाय इन दो तीन चीज़ों के। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, देयर वाज नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गजल्स दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पेस्चर्स। ओके, तो उन मैदानों में ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें जो है कुछ गजल्स थे। गजल्स मीन्स गजल इज एन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ डियर। हिरन की तरह दिखने वाला एक एनिमल होता है गजल। तो वहाँ पे कुछ गजल्स थे, दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग। निबलिंग मीन्स ईटिंग स्लोली समथिंग। तो वो लोग क्या करते थे, दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पेस्चर्स। पेस्चर मीन्स ग्रासी फील्ड, यानी घास उगी हुई जो मैदान होते हैं उसको पेस्चर कहते हैं, जहाँ पे घासें होती हैं। तो वो लोग और एरिड मीन्स ड्राई, वहाँ पे ड्राई पेस्चर्स थे मैदानों में, ठीक है। और वहाँ पे जो गजल्स थे उसको निबल कर रहे थे, उसको खा रहे थे। तो जब ये वहाँ से गुजरते ये लोग, व्हेन दे वुड पास थ्रू द प्लेन्स, ये गजल्स क्या करते थे, द गजल्स वुड लुक अप, वो सर उठा के देखते थे, दे वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, फ्रॉम ईटिंग द ग्रास, and frown before bounding away into the void. And frown means to show displeasure, means to be little angry, थोड़ा नाराज होना, to नाराज़गी जाहिर करना, ठीक है। तो they showed their displeasure how before bounding away into the void, यानी कि वो लोग जो है ना, जब इनको देखते हैं, वहाँ से ये लोग गुजरते हैं, इनको देखते हैं, अपना सर उठा के इनको देखते हैं और फिर वो नाराज़ होती हैं थोड़ा, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं इनटू द वाइड। वाइड मीन्स एम्प्टी प्लेस, ओके। तो अब बिफोर बाउंडिंग अवे मीन्स रनिंग अवे, उसके बाद वो दौड़ करके किसी वाइड में, किसी एम्प्टी प्लेस में चली जाती थी, ओके। सो दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम राव, and in Rao there were some gently rolling hills. Okay, they crossed those hills, and then they reached they passed through some vast plains. Okay, in the vast plains there were some gazelles, and they were eating dry pastures, dry grass. And when they saw the car, they would look up and then run away. They would show their displeasure and run away into the void, into an open space. Further on, where the plains became more stony than grassy. तो पहले तो जो फील्ड थी वो ग्रासी थे, वो उसमें ग्रास थे। उसके जब ये और आगे गए तो जो 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 प्लेन्स थे ना, जो मैदान थे, वो स्टोनी हो गई, वो पथरीली हो गई। इट बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, तो ग्रासी से ज़्यादा वो स्टोनी हो गई, पथरीली हो गई सभी, ठीक है। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू। तो जब ये उस जगह पे पहुँचे तो इन्होंने देखा कि ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, तो उन्होंने जो है वाइल्ड एस का एक बहुत बड़ा झुंड देखा। वाइल्ड हर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ओके। तो उन्होंने वाइल्ड एस यानी जंगली गधों का जो है एक झुंड देखा। केम इन टू व्यू, केम इन टू मीन्स दे सॉ। Satan told us we were approaching them long before they appeared. और Satan the driver had told the narrator and Daniel his companion, ये पहले ही बता दिया दोस्त ने कि आगे जो है ये आने वाला, ठीक है। तो क्या आने वाला है, क्या ये जो ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस होता है, ये जंगली गधों का जो हर्ड था वो आने वाला है, इसके बारे में पहले ही बता दिया था। अच्छा, उसने क्या कहा था, क्यांग ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट। तो उसने जब देखा कि दूर
एक पॉल ऑफ डस्ट था। पॉल मीन्स डार्क क्लाउड की तरह, जैसे धूल जब उड़ती है ना तो उससे जो डार्क क्लाउड की तरह बन जाता है, उसको पॉल ऑफ डस्ट कहते हैं। तो उसने जब दूर उसने देखा एक पॉल ऑफ डस्ट, तो उसने बता दिया कि क्या, उसने कहा क्या, क्या मीन्स दिस वाइल्ड तिब्बतन आइस, जंगली जो तिब्बतन आइस होते हैं उनको क्या कहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। ओके, तो डेनियल द सॉरी Satan the driver had already told the narrator and his companion that they were approaching them. They were approaching the wild asses. And when he saw a cloud of dust at a distance, they told them that there were camps, that there were wild asses. When we drew near, I could see the herd galloping on mass. When we drew near, और जब हम लोग उससे करीब पहुँचे, उन वाइल्ड एसेस के करीब, तो हमने देखा आई कुड सी द हर्ड गैलपिंग ऑन मास। गैलपिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट। तो हमने क्या देखा कि वो जो वाइल्ड एसेस का जो हर्ड था, जो ग्रुप था, वो गैलप कर रहा था ऑन मास। ऑन मास मीन्स ऑल टुगेदर, ये सब साथ में जो है ना वो रन कर रहे थे बहुत फास्ट, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन राइट टाइट फॉर्मेशन। तो वो कैसे दौड़ रहे थे? व्हीलिंग, व्हील का मतलब होता है कि जैसे किसी व्हील्स पे बहुत स्मूथली मूव कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा था व्हील कर रहे हैं, जैसे व्हील्स पे वो मूव कर रहे हो। एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, वो व्हील कर रहे थे, वो ऐसा मूव कर रहे थे जैसे व्हील पे मूव कर रहे हो, और घूम रहे थे, बहुत तेज दौड़ रहे थे और मूव कर रहे थे, और एक अच्छे फॉर्मेशन में मूव कर रहे थे। यानी कि ऐसा नहीं कि सब अलग अलग जा रहे थे। जैसे सोल्जर्स की जो प्रैक्टिस होती है, आपने देखा होगा कि वो सब एक साथ में मूव करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो वाइल्ड एसेस थे, ये जो गैलप कर रहे थे और दौड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये व्हील पे मूव कर रहे हों, और जब टर्न करते थे तो बहुत ही फॉर्मेशन में टर्न करते थे, यानी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से टर्न करते, सब एक साथ टर्न करते थे, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मनूवर्स ऑन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स। जब मनूवर्स का मतलब होता है ना कि मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो बहुत ही केयरफुल हो, बहुत ही स्किलफुल और केयरफुल हो। मनूवर मीन्स अ मूवमेंट विद अटमोस्ट केयर एंड स्किल। और जैसे सोल्जर्स करते हैं, जब सोल्जर्स जब एक्सरसाइज करते हैं तो सब साथ में करते हैं और बहुत ही केयरफुली और बहुत ही स्किलफुली करते हैं, ठीक है, और सब साथ में कर रहे होते हैं। तो जब ये वाइल्ड ऐसे दौड़ते हुए आ रहे थे और एक फॉर्मेशन में, तो ऐसा लग रहा था कोई मनूवर कर रहे हो, जैसे सोल्जर्स एक्सरसाइज करते हैं। इन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स, ऑन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स। प्री डिटरमिन्ड कोर्स मीन्स फिक्स्ड कोर्स, ऑलरेडी फिक्स्ड कोर्स। कोर्स मीन्स रास्ता। तो ऐसा लग रहा था कि उनका रास्ता पहले से तय हो, ठीक है, पहले से डिटरमिन्ड हो, और उस रास्ते पर, उस कोर्स पर वो कोई मनूवर कर रहे हो। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर। और जब वो दौड़ रहे थे तो क्या हो रहा था? प्लूम्स ऑफ डस्ट, प्लूम्स मीन्स स्मोक, स्मोक ऑफ डस्ट जो है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, प्लूम्स ऑफ डस्ट मीन्स क्लाउड्स ऑफ डस्ट। तो ये वहाँ से बिलो कर रहा था, बिलो का मतलब राइज कर रहा था, इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर। क्रिस्प मीन्स वेरी कोल्ड एंड ड्राई। जब हवा बहुत ठंडी होती है ना तो कोल्ड होती है और ड्राई भी होती है, ठीक है। और तो क्लीन और क्रिस्प एयर में जो है वो जब वाइल्ड ऐसे जब रन कर रहे थे, उसकी वजह से जो क्लाउड ऑफ डस्ट पैदा हो रहा था, वो हवा में वो बिलो कर रहा था, राइज कर रहा था, ठीक है। तो when they started their journey from Rao, the first they passed through some rolling hills, okay, and then they passed through a vast plains. In the plains they saw some gazelles, and when the gazelles
saw their car, they would look up and they would show their displeasure and they before running away from there. And further on, they saw some a few herds of wild asses. Okay, and they were galloping in tight formation, like they were practicing some maneuvers on a predetermined course. And while they were galloping or running, uh, the plumes of dust, clouds of dust rose into the uh, dry, cold, and crisp air. All right. So, my dear students, today up to here only. Tomorrow we'll continue. Thank you very much.